Hello, my dear students. In last lecture, you studied about the valence bond theory, and now I am taking crystal field theory. Crystal field theory is particularly based on the central atom and ligands are specifically the negatively charged or neutral ligands. This theory was proposed by Orgel. Orgel एक scientist थे जिन्होंने इसको propose किया. The main point of this theory is that the central atom is surrounded by the negatively charged ligands, or sometimes these are surrounded by the neutral ligands. Negatively charged ligands like that of a fluoro, chloro, bromo, iodo, bromo, cyano, hydroxo, and so on. These are the negatively charged ligands, and negatively charged ligands they surround the central atom. And the neutral ligands like that of a water, H2O and NH3. When these ligands they surround the central atom, then they push their charges toward the central atom. ये अपने charges को क्या करते हैं? Central atom की तरफ push करते हैं. And due to which the electron density around the nucleus become increases. इसके कारण क्या होता है? जब ये सब घेर लेते हैं इसको, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. And when the electron density around the central atom become increases, then the d orbital of the central atom is split into the two parts. तो d orbital जो central atom की है वो दो पार्ट में break up हो जाती है. You know the d orbital it contains the 5 dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. This is the d orbital of the central atom. And these three orbitals, dxy, dyz and dxz, these are called as a degenerative orbital. Degenerative orbital because they contain the same energy. इनकी जो एनर्जी होती है degenerative orbitals की वो हमेशा सेम होती है. And this is the ground state जब central atom को ligands ने घेर रखा उस समय की ये पोजीशन है. And after that the d orbital of the central atom it get excited to their higher energy level. तो ये excited हो जाता है किसकी तरफ? Excited होता है higher energy level में. And the d orbital of the central atom is split into two parts और ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है. dxy, dyz and dxz. These three orbitals are present in the lower side and these three orbitals these are called as a T2G. In there are two cases. देखिए जब हम लोग CFT पढ़ते हैं तो हमारे पास दो केस आते हैं. First for the coordination number 6 and for the coordination number 4. For the coordination number 6, always remember the octahedral complexes are formed. Octahedral complexes means if the coordination number is 6, then it is surrounded by 8. अगर 6 होता है तो हमेशा 8 की surrounding होती है. Like that in case of the ML6, where M is the central atom. M क्या है आपका? Central atom. L is the ligands and coordination number is 6 and N is the charges or number of atom. अभी देखिए हमारे पास octahedral ज्योमेट्री कैसे होती है. सेंट्रल एटम में अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, आगे और पीछे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. हमेशा ध्यान रखना अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनती है. तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई. एंड ऑल द लिगेंड्स दे सराउंड द सेंट्रल एटम. इन सारे लिगेंड्स ने सेंट्रल एटम को सराउंड किया. सराउंड करने के कारण वो एक्साइटेड स्टेट पे किया. ये थ्री ऑर्बिटल इनको हम डिजेनरेटिव ऑर्बिटल कहते हैं. एंड दीज टू ऑर्बिटल ये दोनों ऑर्बिटल अलग रहती हैं. दीज आर कॉल्ड एज अ जनरेटिव ऑर्बिटल. These two orbitals these are called as the EG and three orbitals these are called as the T2G. एक सिंपल से ट्रिक आपको बताएं. अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑलवेज रिमेंबर थ्री ऑर्बिटल्स लोअर साइड में आएंगी. और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल भी दिया है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4. और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारा जो डायग्राम बनेगा इसमें देखिए सेंट्रल एटम 4 लिगेंड को सराउंड कर रहा है. लिगेंड्स ने अपने चार्जेस को पुश कर दिया किसकी तरफ? सेंट्रल एटम की तरफ. तो डी ऑर्बिटल जो आपकी सेंट्रल एटम की है पहले वो एक्साइटेड स्टेट में जाती है और एक्साइटेड स्टेट के बाद वो ब्रेक होती है दो पार्ट में एनर्जी लेवल के बेस पे.
लोअर पे हमारे पास 2 ऑर्बिटल आती हैं, दीज आर कॉल्ड द Eg। अब Eg में कौन कौन आएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, एंड dxy, dyz एंड dxz, ये हमारे पास तीनों की तीनों ऊपर पहुंचती है। जो ये 3 है, 3 को ऐसे लर्न कर लिए, 3 मतलब T2G, और 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं Eg। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन this one is 0.6 and this is the 0.4। अब ये 0.6 और 0.4 कहाँ से आया, देखिए ऊपर कितनी, नीचे कितनी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 5 में से केवल 3 ने लोअर साइड में आई, बची कितनी हमारे पास 2, तो 5 का 2 से किया तो कितना हो गया 0.4, इसलिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है 0.4। ऊपर देखिए कितनी ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल, इसके मतलब रेस्ट 3 बची, 3/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.6। 0.6 0.4 को ऐड कर देते हैं तो 0. तो फिर हमारे पास 1 हो जाता है। एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड Eg, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिसाइड करती है कि लिगेंड्स की फिलिंग कैसी होगी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा 0 और dq से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस अगर की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हमेशा ध्यान रखना है Eg लोअर साइड में आएगा और T2G ऊपर है। T2G में हमेशा हमें 0.4 लिखना है और Eg की तरफ 0.6 लिखना है। अब देखिए एग्जामिनेशन में अगर आप लोग के क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। एनसीईआरटी में इस तरीके के आपको बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए होंगे कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन थर्ड लिया है, आयरन थर्ड दैट मींस इट इज ऑक्टाइड्रल। अभी आपको उसने नाम में दिया ऑक्टाइड्रल। ऑक्टाइड्रल का मतलब है हमको जब डायग्राम बनाना पड़ेगा तो T2G नीचे बनेंगे और Eg ऊपर। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेगा तो Eg को हम नीचे बनाएंगे और T2G को ऊपर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में उसने ऑक्टाहेड्रल बोला है या टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है तो T2G नीचे आएगा, अगर टेट्राहेड्रल बोलेगा, टेट्राहेड्रल बोलेंगे तो हमें Eg को नीचे बनाना है। ठीक है, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में देगा हमेशा कोई सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम उसने दिया है आयरन थर्ड ऑक्टाहेड्रल, फाइंड आउट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। तो इसको हमें स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में कैसे हमें डायग्राम को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टू राइट द एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 एंड 3d6। अभी आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, आयरन ने थर्ड, आयरन थर्ड का मतलब इट लूज द 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। जब लूज किया तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d5 एंड 4s0। ठीक है, अभी टोटल इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कितने आ गए 5। जब हम एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम उसको ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करें, हम डायरेक्टली इसको एक्साइटेड स्टेट पे रख सकते हैं। जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट पे रखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5। ये आपने 11th क्लास से अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग 1 बाय 1, हमें इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरना पड़ता है। एक एक करके मतलब पहले हमारे पास dxy में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, dyz में भी एक है, dxz में भी एक है, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी एक ही है, और dz स्क्वायर पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपको उसने 2 कंडीशन दी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए क्या करना है और वीक के लिए कैसे डायग्राम बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसा कि आपने VBT में भी हम लोगों ने यूज किया था, हमने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी होती है जो डिसाइड करती है, जिसमें कार्बोनाइल स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, कार्बोनाइल के बाद साइनाइड, फिर अमाइन और ऑर्गेनिक लेते हैं तो EN। ये हमारे पास 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इनके अलावा जितने भी लिगेंड है वो सारे हमारे वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑलवेज पुश बैक द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द इनर साइड। ये क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो पुश करते हैं, बट जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को आगे तक भरने देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये क्या बनाई, इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के बाद निश्चय नेचुरल है कि आपको दिया क्या रहा है वो ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल दे रहा है, इसके मतलब है कि ऑक्टा का मतलब है हमें T2G को नीचे बनाना पड़ेगा 1 2 3। आप ब्लॉक में भी बना सकते हैं, गोले में भी बना सकते हैं, जिसमें आपकी मर्जी हो। ये हमने इसको अभी चूंकि आपको ब्लॉक में ही समझाया तो मैंने ब्लॉक में कर दिया, और ये हमने ऊपर बना दिया इसका Eg के मतलब ये ऑक्टाहेड्रल से डिसाइड किया कि T2G मुझे लोअर बना रहे हैं और Eg हमें ऊपर बना रहे हैं।
ठीक है। T2G पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन द T2G, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो गए, T2G में, एंड Eg रिमेन एम्प्टी, और Eg कैसा हो गया आपका, खाली, यानी हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, T2G 5 एंड Eg इज इक्वल टू 0। ये हमारा आपके पेपर में ये आंसर चेक करते हैं, और इसके साथ में उसके बाद वो आपसे ये भी पूछते हैं इट इज पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक। हियर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो इट इज अ वीक पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू √n+2, जो आपने मेरे अपने DNF ब्लॉक का जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेशन करना सिखाया था, फॉर्मूला हमेशा वही लगता है। n इज इक्वल टू कितना है आपके पास 1, म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया √1 एंड 1+2 bm, इसके मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई √3 एंड √3 इज इक्वल टू 1.9 bm। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हमारे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द T2G एंड Eg रिमेन एम्प्टी। एंड नाउ सेकंड कंडीशन भी उसने आपको दी है, क्या, वीक फील्ड। इफ द वीक फील्ड इज प्रेजेंट, अगर वीक फील्ड प्रेजेंट होगी तब कैसे करेंगे, ये देखिए मैं आपको ये अभी बता के हटा देती हूँ। और अगर वीक फील्ड है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फॉर वीक फील्ड, अब हमने वीक फील्ड के लिए डायग्राम बनाना है। वीक फील्ड का मतलब हो गया लिगेंड्स वीक होंगे, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी कितने हैं इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि हम लोग आयरन थर्ड को ही सॉल्व कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। अभी अगर वीक फील्ड है तो वीक फील्ड का मतलब है बनेंगे तो अभी भी डायग्राम में T2G नीचे ही आएगा और Eg को हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, Eg मतलब 2, ये हो गया Eg और ये हो गया हमारे पास T2G। लेकिन वीक फील्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन 1 by 1 फिलिंग होती है, पेयरिंग नहीं करते हैं। क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। फाइनली हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, T2G 3 होंगे और Eg कितना आ जाएगा 2, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5। n की वैल्यू कितनी आ रही है, n इज इक्वल टू 5, सो म्यू इज इक्वल टू √n+2 का फॉर्मूला लगा दिया, n+2 bm, यानी टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास म्यू इज इक्वल टू √5 एंड 5+2 7 × 5 7 35 √35, 6 6 35 होता है, ये हमेशा भी पूरी नहीं आती है, यानी फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 5.9 bm। इसके मतलब अभी आपके पास कैसी भी कंडीशन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी या फिर वीक फील्ड होगी, तो CFT के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द कंडीशन इज अप्लाइड, कैसी कंडीशन वो आपको एग्जामिनेशन में दे रहा है, आइदर द ऑक्टाहेड्रल और द टेट्राहेड्रल। कंडीशन आपकी ऑक्टाहेड्रल की है या फिर टेट्राहेड्रल की है। ऑक्टाहेड्रल की है T2G नीचे बनाइएगा, Eg ऊपर बनाइएगा। टेट्राहेड्रल की अगर कॉम्प्लेक्स आएगा तो Eg नीचे बनेगा, T2G ऊपर। स्ट्रॉन्ग फील्ड देगा तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, पहले वो पेयरिंग करेगा, और अगर वीक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यूज आपकी, और CFSE की वैल्यू को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए आपके T2G पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम इंटू 0.4 से करते हैं। हमारे पास CFSE का फाइंड करने का भी CBSE में क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, हम एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाता है 0.4 इंटू T2G के जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो, प्लस माइनस में आती है ये वैल्यू -0.6 इंटू YY मतलब Eg के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, ठीक है। इनको कैलकुलेट करके हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं और पूरे पेपर को हम लोग जनरली ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ ये चेक करना होता है कि वो ऑक्टाहेड्रल में है, टेट्राहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा, जो चीज़ नहीं है आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। चलो आप तुम लोग